میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے سلامتی بخشی، اور اس وقت میں آپ کے درمیان ہوں۔ اور سب سے پہلے شکر گزار ہوں شکینہ ٹیلی ویژن کا کہ جس کے توسط سے ہم خداوند کے زندہ بخش کلام کو چند لمحوں کے لیے سیکھنے کو ہیں۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں چیئرمین شکینہ ٹیلی ویژن کے اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کیمرہ مین کے لیے، تمام ان سسٹم کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اور اب چلتے ہیں ہم خداوند کے زندہ بخش کلام کی طرف، کیونکہ کلام الہی جو ہے وہ ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے بہترین جو ہے، وہ جیسا کہ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ سو شکر گزار ہیں خداوند کے اس زندہ بخش کلام کے لیے کہ جس کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں۔ اور آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ بے شک ہر ایک بشر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہوں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے صرف حالات بہتر ہوں، لیکن وہ خود بہتر ہونا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ خداوند کا زندہ بخش کلام جو اندرونی بیرونی طور پر جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ بخش کلام کی طرف چلتے ہیں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے خروج 14واں باب، اور اس کی 5 آیت سے 18ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ سو میرے ساتھ جو اس وقت شکینہ ٹیلی ویژن کے ساتھ ہیں، سو وہ کلام مقدس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خروج 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت ہے، اور 18ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ سو اس طرح سے لکھا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون جو ہے اور ان کے خادموں کے دل جو ہیں ان لوگوں کی طرف پھر گئے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ 600 چنے ہوئے رتھ، بلکہ مصر کے سب رتھ لیے، اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا، اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے، اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی ہخروت کے پاس بال صفون کے سامنے جو ہیں ڈیرے ڈالے، اور جب فرعون نزدیک آ گیا، تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟
बनी इसराइल से कह के वो आगे बढ़ें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क ज़मीन पर चलकर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल को सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फ़िरौन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज़ हूँगा। और जब मैं फ़िरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज़ हो जाऊँगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो बेशक तलावत तवील है, लेकिन मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको सारी बात जो है, जो आज हमारा मजमून है, वो समझ आ जाए कि जब इस पर हम बात करें तो सारी जो स्टोरी पढ़ी है एक एक बात के लिए आपको समझने में आसानी होगी। सो आज का हम देखते हैं कि जो कलाम मुक़द्दस में मजमून है वो ये है कि पीछा कौन करता है, और इसका अगला हिस्सा है कि आगे बढ़ना। अब इन 2 बातों को हम आज खुदावंद के ज़िंदबख्श कलाम से सीखते हैं। सो मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, जो इस वक्त मेरे साथ हैं, ज़रा तवज्जो से खुदावंद के कलाम की बातों को सुनिएगा, और आज मैं ईमान रखता हूँ कि आप इससे बरकत पाएंगे। सो पहली बात जो हमने खुदावंद के ज़िंदबख्श कलाम में से पढ़ी है कि लोग हालात बदलना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को बदलना नहीं चाहते। तो मेरे अजीज़, खुदावंद का ज़िंदबख्श कलाम हमसे यानी कि चाहता है कि हम पहले अपने आप को बदलें। अब हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है वो इस वक्त गुलामी में जो है वो दबी हुई है और मुश्किल का शिकार है। हालात उनके जो हैं वो दुरुस्त नहीं, लेकिन जब उन्होंने खुदावंद की तरफ अपना रुख किया और खुदावंद के हजूर गिड़गिड़ाए और उन्होंने अपने आप को बदला और खुदा ने उनकी आवाज़ सुनी और उनका कराहना जो है वो सुना, और यकीनन उनके हालात बदलने के लिए खुदा जो है वो तैयार हो गया। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद जो है वो चाहता है कि आप उसकी मर्जी के मुआफिक चलें, क्योंकि आज की जो बात है वो यही है कि जब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल कौम निकले तो मेरे अजीजों, खुदा ने उनके हालात बदले और कहा कि मैं जो है तुम्हें मुल्क कनान में जो है पहुंचाऊंगा, वहां दूध और शहद बहता है। वो बेहतरीन जो है खुदा ने वादा किया, बेशक उनके हालात बदलने के लिए। और आज मैं भी चाहता हूं कि खुदा मेरे हालात बदले, और आप भी चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं। लेकिन बात यह है कि जब हम अपने आप को बदलेंगे तो यकीनन इसके साथ हमारे हालात भी जो हैं वो बदल जाएंगे, आमीन। सो देखते हैं कि जब बनी इसराइल कौम जो है वो मुल्क मिस्र से निकले तो मेरे सीसो, जब वो बहरे कुलज़म तक पहुंचे तो आगे समंदर है और पीछे फौज है और फ़िरौन है। मेरे सीसो, जब उन्होंने देखा कि हमारी जो सारे काम करते थे, जो लोग हमारी खिदमत करते थे, उनको हमने छुट्टी दे दी है और हमारे ये काम कौन करेगा। अब जब बादशाह को ये बात पहुंची कि वो सब जो है वो चले गए हैं, तो बादशाह जल्दी करता है, सबको बुलाता है और कहता है कि उनके पीछे जाओ, उन्हें फिर वापस ले आओ, क्योंकि हमारे काम कौन करेगा। अब बात यह है कि पीछा उनका कौन करता है। बादशाह करता है और वो अपनी फौज को लेकर
और 600 रथों को लेकर जो है वो उनका पीछा करता है। और बात यह है कि बनी इस्राएल कौम जो है वो मुल्क मिस्र से निकली, गुलामी से आज़ाद होकर वो निकली। और मेरे अज़ीज़ों, अब देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में जो बात हमने पढ़ी है कि फ़िरौन जो है वो अपने रथों को लेकर जो है, सारे मिस्रियों को जो लेकर जो है, सरदारों को, वो उनके पीछे निकलता है। अब आगे समंदर है और वो देखते हैं कि फौज जो है वो चली आती है और वो घबरा गए हैं। और मेरे अज़ीज़ों, पहली बात तो ये है कि फ़िरौन उनका पीछा करता है, और दूसरे नंबर पर है ये है कि वो कैसे उनका पीछा करता है। वो अपनी फौज को लेकर, वो अपने सरदारों को लेकर, वो सारे मिस्रियों को लेकर जो है वो उनका पीछा करता है। और उसके बाद वो पीछा क्यों करता है, ये 3 बातें हैं। पीछा इसलिए करता है कि दोबारा जो है वो उन लोगों को लाकर उनसे काम करवाएं और खिदमत कराएं, ताकि उनका कोई खिदमत करने वाला ना था, क्योंकि वो आदी हो चुके थे कि दूसरों से काम कराने के। और उसके बाद अब देखते हैं कि फ़िरौन जो है वो पीछा करता है अपनी फौज को लेकर, और वो कैसे करता है, 600 रथों को लेकर, सरदारों को लेकर और अपने उन सिपा सलारों को लेकर, फौज को लेकर उनका पीछा करता है। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, बात यह है कि जब इंसान गुनाह की गुलामी से आजाद होता है तो क्या हमारा पीछा कौन करता है? ये तो है कि बनी इस्राएल कौम का जो है पीछा फ़िरौन बादशाह करता है अपनी फौज को लेकर, और वो किस तरह से करता है और क्यों करता है। लेकिन अब जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब इंसान गुनाह की गुलामी से आजाद होता है तो क्या इब्लीस आपका कैसे पीछा करता है? इब्लीस क्यों पीछा करता है? ये बड़ी गौरतलब बात है कि इब्लीस भी इसी तरह अपनी फौज को लेकर, अपने रथों को लेकर, अपने उस तुंदी से जो है वो पीछा करता है। हर उस बशर का जो गुलामी से आजाद होकर, उससे छूटकर खुदा की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है, खुदा की मर्जी को फॉलो करता है और खुदा के साथ जिंदगी बसर करता है। तो इसी तरह मेरे सीसो बनी इस्राएल कौम का जो है फ़िरौन बादशाह पीछा करता है, और आज जब हम दौरे हाजिर पर नजर करते हैं तो इब्लीस शैतान जो है वो पीछा करता है। तो खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि वो क्यों पीछा करता है, इसलिए कि उसका भी जो है ये जरूरी है कि वो भी अपने लोगों के साथ मिलकर उनका पीछा करे, ताकि उन लोगों को दोबारा अपनी गुलामी में ले आए। सो हम बात कर रहे थे कि फ़िरौन बादशाह बनी इस्राएल कौम का पीछा करता है क्योंकि वो उनके गुलाम थे, और वो किस तरह से पीछा करता है, अपनी फौज को लेकर कि दोबारा जो है उन्हें वापस ले आएं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो गुनाह की गुलामी से आजाद होते हैं, फिर उनका पीछा जो है वो अब इब्लीस करता है। वो अपनी फौज को लेकर उनका पीछा करता है ताकि उसके जो काम नहीं होते वो उनसे दोबारा जो है वो करवाए, और बाकी रहे सहे काम जो हैं वो उनसे करवाए। क्योंकि जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में वो बहुत काम करवाना चाहता है, खुदा से उसे दूर ले जाना चाहता है, इसलिए उसे उसका पीछा करता है और दोबारा गुनाह की गुलामी में जो है वो लाना चाहता है। तो मेरे सीसो, आज गौरतलब बात है कि जब इब्लीस पीछा करता है तो हमें क्यों ना होशियार होना चाहिए,
क्योंकि खुदावंद का बंदा मूसा जब बनी इसराइल कौम को जो है वो लेकर जाता है तो आगे समंदर है, बहरे कुलज़म है और पीछे उनके जो है वो फौज लगी हुई है और वो घबरा जाते हैं। उनका आलम जो है वो देखने वाला है। तो इसी तरह जब इब्लीस आपको घेरता है, आपके पीछे लगा होता है, तो आप किसी ना किसी तरह खौफजदा हो जाते हैं। वो ऐसे समाज जो है वो पैदा करता है, ऐसा माहौल बना देता है कि आपको खौफजदा करके वापस लौटाना चाहता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा ने वादा किया है, अगर वो बशर, वो इंसान, वो लोग खुदा के वादे पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों फिर खुदा साथ होता है। और इसी तरह अब फौज जो है वो उनके पीछे है और आगे समंदर है। अब जब उन्हें कहा जाए, खुदा कहता है कि मूसा को कि इन्हें कहो आगे बढ़े। अब आगे समंदर है, पीछे फौज है, तो वो एक दूसरे की तरफ क्यों ना देखते होंगे और ऐसे कहते होंगे कि मेरा ख्याल है वो कहते होंगे हम कैसे जाएं आगे, तो समंदर है। और उस वक्त मूसा जो है वो उन्हें कहता है कि आगे बढ़ो। अब बात यहां पर ये है कि वो खुदा जो आपको बनी इसराइल कौम को जो है वो मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया और वो साथ साथ रहा और दिन को बादल का सतून बनकर, रात को जो है वो आग का सतून बनकर उनके दरमियान रहता है, तो मेरे अज़ीज़ों बनी इसराइल कौम जो है वो भूल जाती है, बल्कि एक खौफ सा उन पर तारी हो जाता है। आगे समंदर है, क्या करें, आगे जाएंगे तो डूबेंगे, पीछे बादशाह फराउन की जो फौजें हैं वो हमें पकड़ने के लिए जो हैं वो आ रही हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, अब हम देखते हैं कि जब ऐसी कंडीशन इंसान की होती है तो वो क्या करता है, परेशान हो जाता है। यकीनन बनी इसराइल कौम भी परेशान हुए, लेकिन मूसा जो है उनसे कहता है, उन्हें दिलासा देता है। लेकिन अब देखना यह है कि अब इस वक्त जो खुदा के लोग हैं, बरगजीदा हैं, ईमानदार हैं और खादमुद्दीन हैं, वो बेशक खुदा के लोग हैं, लेकिन इब्लीस जो है उनका पीछा करता है। वो कहीं ना कहीं उन्हें आग घेरता है, जैसे बनी इसराइल कौम चारों तरफ से जो है वो घिर गई। वो कहती कि हम कहां जाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर खुदा मूसा को कहता है कि पानी पर जो है वो लाठी को मार ताकि रास्ता इनके लिए बन जाए। और मेरे अज़ीज़ों, खौफज़दा लोग जो हैं वो मूसा की तरफ निगाह करते हैं और वो इस बात पर यकीन ना रखते थे, वो भूल चुके थे कि वो खुदा हमारे साथ जो है वो चलता है और वो कहता है। अब देखते हैं कि इब्लीस जो है वो किस तरह से पीछा करता है। इब्लीस हर बशर का पीछा करता है जो खुदा के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। वो बुरी आदतों के वसीला से, वो बुरी ख्वाहिशात के वसीला से, वो नाफरमानी के वसीला से जो है वो पीछा करता है और हर वक्त पीछे लगा रहता है। लेकिन जो गुनाह की गुलामी से आजाद हुए हैं, उन्हें कैसा होशियार होना चाहिए, उन्हें किस तरह जो है वो इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि हमारा पीछा कोई कर रहा है। लेकिन खुदावन कहता है बनी इसराइल कौम को कि आगे बढ़ें। अब वो कैसे आगे बढ़ें? मेरे अज़ीज़ों, खुदा बनी इसराइल कौम को कहता है कि आगे बढ़ो। इन हालात में जो है वो बनी इसराइल जो है वो खौफज़दा होकर बुड़बड़ाने लगते हैं और वो मूसा को कहते हैं कि मिस्र में क्या कब्रें ना थी। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंबश कलाम में से जब हम देखते हैं कि मूसा जो है वो उनको कहता है, जब उनके बुड़बड़ाने की आवाज वो सुनता है और वो फिर कहता है, ता मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत। अब लोग जो है वो डर रहे थे
کیونکہ ہم دوبارہ جو ہے وہ غلامی میں چلے جائیں گے، اور انہیں دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کے نجات کے کام کو دیکھو جو آج تمہارے لیے کیا ہے کرے گا۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر بھی ایک غور طلب بات ہے کہ موسیٰ کہتا ہے خدا کا بندہ کہ اس کی نجات کے کام کو جو ہے وہ چپ چاپ جو ہے وہ کھڑے دیکھو، کیونکہ پہلے وہ دیکھ چکے تھے، اب آج کی بات کر رہا ہے موسیٰ ان کے ساتھ۔ لیکن میرے عزیزو، آج جب ہم دور حاضر میں اس وقت اس بات کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو میرے عزیزو، خدا کل آج اب تک کیا ہے یکساں ہے۔ وہ ایسا خدا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم مصیبت میں پڑ جاتی ہے اور بے شک وہ انہیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا ہے، کس طرح آپ نے ان مصیبتوں سے نکلنا ہے، خدا سکھا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتاتا بھی ہے موسیٰ کے وسیلہ سے کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو انہیں کیا ہے تم پھر کبھی اب تک نہ دیکھ سکو گے۔ آمین۔ تو یہ بات خداوند اپنے لوگوں سے کہتا ہے، اور میرے عزیزو اسی طرح جو خدا کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، جو خدا کے ساتھ وفادار زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، تو بے شک یہ ان کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ ان کے اندر جو نافرمانیاں ہیں، جو بری خواہشات ہیں، جو ابلیس کے سارے منصوبے ہیں، ان کی زندگیوں میں سے ابلیس کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بے شک جو خدا وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب اس کے کلام پر بھروسہ رکھیں گے تو یقیناً وہ اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ اسی طرح جب انہیں کہا گیا کہ کھڑے ہو کر جو ہے خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو آج تمہارے لیے کرے گا، تو میرے عزیزو جب وہ مصریوں کے لیے یہ کام کر سکتا ہے تو کیا میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ نہیں؟ بے شک وعدہ ہے۔ آپ بھروسہ رکھیں، آپ یقین رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ میں آج تمہارے لیے یہ کروں گا کہ مصری جو آپ دیکھ رہے ہو، آپ کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، انہیں دوبارہ نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو میرے عزیزو پھر خدا جو ہے ان کے لیے راستہ بناتا ہے، اور بنی اسرائیل کا جو اس وقت خوف کا انداز تھا وہ کیا ہے ہٹ جاتا ہے۔ جب موسیٰ دریا پر بحر کلزم پر جو ہے سمندر پر جو ہے آسا لگاتا ہے تو پانی جو ہے وہ دو حصے ہو جاتا ہے اور ان کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ اب یہ بات جو خدا نے کہی کہ آگے بڑھو، جب ان کے لیے راستہ بنتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو خدا آپ کے ساتھ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو خدا نے انہیں سکھایا کہ میں تمہارے لیے اس ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ بے شک انسان کے لیے یہ ناممکن تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس بحر کلزم کے دو حصے کر دیے ان کے لیے جن کے وہ ساتھ تھا، جن کی اس نے مصیبت کو دور کیا، انہیں غلامی سے نکالا، اور بے شک وہ خدا نے ان کے لیے راستہ بنایا۔